Hello friends, in the last class we was talking about the raw material of the photosynthesis. In this class, firstly we will talk about the structure of chloroplast, and after that we will study about the mechanism of photosynthesis. So firstly we are starting the structure of chloroplast. If we are going to discuss the structure of chloroplast, firstly we have to talk about what is chloroplast. We know very well that chloroplast is a plastid. Plastid are the particular type of cell organelles which are responsible for the coloration. There are three types of plastid. First is chromoplast, second is chloroplast, and third is leucoplast. Before also we have talked about all these type of plastids. Chromoplast is responsible for the colors in like the yellow, orange, etc. etc. There are many pigments for such type of colors. Chloroplast is responsible only for green color. Chlorophyll is a pigment which is present in it, that is responsible for the green color, and leucoplast will be colorless or white. It is due to the storage of the food material. In this topic we are going to discuss about only chloroplast. If we are talking about the structure of the chloroplast, chloroplast is a double membranous cell organelle. क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है. क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, यानी कि उसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन है डबल होती है. आउटर साइड वाली जो सेल मेम्ब्रेन है, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ आउटर साइड इज कॉल्ड आउटर सेल मेम्ब्रेन, and inner side cell membrane, inner cell membrane. After that, a liquid jelly like matrix is filled up in it, that is known as stroma part, that is known as stroma part. This is outer membrane, outer membrane, outer membrane. This is inner membrane, inner membrane. This particular jelly like substance matrix part is called stroma. In stroma, many coin shaped structures are grouped together. In stroma, many coin shaped structures are grouped together, and these are connected with other group by a thin tube. These are connected with other group by a thin tube, and there are many such type of structures in it. This particular structure, these particular coin shaped structure is called thylakoid, thylakoids, and the complete group, complete single group is called granum. Complete single group of such thylakoids are known as granum. All these structures, coin shaped grouping structures of chloroplast in plurally known as grana. मीन्स सिंगुलर में इनको ग्रेनम बोलेंगे, और अगर पूरा कंप्लीट जो भी स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम एक साथ बोले तो उनको क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे. मीन्स लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज स्ट्रोमा एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज ग्रेना. ऑन द ग्रेना, both granum or all the granums are connected by a thin tube that are known as Fred channel, Fred's channel, or lamellae, Fred's channel and or lamellae. There are in stroma there is a particular structure, genetical structure. It is known as chloroplast DNA. Chloroplast DNA. Ribosome is also present in chloroplast. Ribosome is also present in chloroplast. Ribosome also present in chloroplast. In stroma, many enzymes are present for the dark reaction. स्ट्रोमा के अंदर कई सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कई सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं स्ट्रोमा के अंदर, जो कि लिक्विड पार्ट है. यहाँ पर हमको मेन बात करनी है क्लोरोप्लास्ट डीएनए और राइबोसोम की बात करनी है, इसलिए मैंने इन दोनों को लेबल किया है. तो एक बार दोबारा से स्टार्ट से देखते हैं. वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट.
क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, क्लोरोप्लास्ट इज ए डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, यानी क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल होता है, यानी इसके डबल सेल मेम्ब्रेन होती है. आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर साइड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन. In it there is the whole structure, the complete structure of the chloroplast can be divided into two parts. First we are looking here is liquid part and second is solid part. The liquid part is known as stroma and the solid part is known in the solid part there are many coin shaped structures. The particular coin shaped structure is known as thylakoid and the groups of thylakoids are known as the granum and the complete granum of the chloroplast are known as grana. Two or more granums are connected with each other by a thin tube known as Fred's channel or lamellae. Two or more granums are connected with each other by a thin tube that is called Fred's channel or lamellae. In the stroma, there are two main components are present. First is ribosome, second is chloroplast DNA. On the basis of these two things, we can say that chloroplast is having its own genetic material and chloroplast can own protein synthesis. Means in chloroplast there will be genetic material in the form of DNA and there will be protein synthesis also. There will be protein synthesis. On the basis of these two features, we can say that chloroplast is a semi-autonomous organ. We can say that chloroplast is a semi-autonomous organ. किसी भी सेल ऑर्गेनेल को हम ऑटोनोमस ऑर्गन कब बोलेंगे, उसके लिए हमारे यहाँ पर दो शर्तें हैं. पहली शर्त ये है कि उसके अंदर खुद का डीएनए होना चाहिए, इट्स हैविंग इट्स ओन डीएनए. और सेकंड थिंग इज दैट इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, मीन्स इट हैविंग इट्स ओन प्रोटीन फैक्ट्री, यानी इसके पास इसका खुद का प्रोटीन बनाने के लिए इसकी प्रोटीन फैक्ट्री होनी चाहिए जो कि राइबोसोम होता है. और साथ ही साथ ये अपना खुद का प्रोटीन सिंथेसिस अपना जेनेटिक मटेरियल रखता हो. ये दो अगर क्वालिटी है उसके अंदर तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के बारे में, मतलब सेल ऑर्गेनेल इसको बोलते हैं. यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के अलावा सेल के अंदर एक और सेल ऑर्गेनेल होता है जिसको कि हम सेमी ऑटोनोमस कैटेगरी में रखते हैं और वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया को भी हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और साथ ही साथ में इसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. नाउ इफ वी टॉक्ड अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द डिस्कवरी किसने की है, शिम्पर एक्सप्लेन अबाउट द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन किसने दी है, शिम्पर ने दी है. द साइंटिस्ट विच इज रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज शिम्पर. उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट देयर आर मेनली टू थिंग्स, ग्रेना एंड स्ट्रोमा. ऑन द बेसिस on grana there are particular coin shaped structure which are known as thylakoid. The dot like structures is also present on here. These are called quantasome. Quantasome is the unit of photosynthesis. We have already discussed this. Quantasome is the unit of photosynthesis, means that quantasome having the capacity to absorb the light energy. क्वांटासोम्स हैविंग द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी. क्वांटासोम के अंदर लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, सो इट इज नोन एज फोटोसिंथेटिक यूनिट. इसी वजह से क्वांटासोम को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट बोलते हैं. नाउ this is the structure of chloroplast. We are clearly looking here that the main part completely divided into two conditions, two structures, stroma and the grana. Now when we will talk about the process of the photosynthesis, there are mainly two reactions, light reaction and the dark reaction. When we are discussing the process of the photosynthesis, there are two reactions, light reaction and dark reaction.
फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड ऑन ग्रेनम एंड डार्क रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड इन स्ट्रोमा। यानी लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी? ग्रेना में होगी, और डार्क रिएक्शन किस में होगी? स्ट्रोमा में होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Yes, now we are starting the mechanism of photosynthesis. On the board you can see the complete mechanism of the photosynthesis. We can divide it into two parts, light reaction and the dark reaction. We have already discussed about the location of these particular reactions, that light reaction will be completed on the grana part of the chloroplast, and the dark reaction of the photosynthesis will be completed in the stroma part of the chloroplast. Here firstly we know very well that a green color pigment is also present in chloroplast, that is known as chlorophyll. A green color pigment is present in chloroplast, that is known as chlorophyll. Yes, mechanism of photosynthesis can be classified into two parts. First part we are starting light reaction. Light reaction is also known as the photochemical process. Light reaction is also known as photochemical process. Here you can see two words, photo and chemical. Means in this reaction these two things are necessary. Photo means light and chemicals means chemicals. Means in the light reaction the light must be necessary to complete this process. If there is absence of light, then the light reaction will not be completed. So in the presence of the light, the reaction will be happened is called light reaction. So it is known as photochemical process. The second thing is it is discovered by light reaction is discovered by explained by Robert Hill. So this reaction is known as Hill's reaction. This reaction is also known as Hill's reaction because it is discovered by, it is explained by Robert Hill. Third point is we have already talked that site is grana. The raw material will be, as we know, the raw material will be light and water because it is a photochemical process. Light reaction है तो light compulsory है होना, और water because water का breakdown होना है. ठीक है. Now we are starting three steps of this particular reaction. First step is photo excitation of the chlorophyll molecule. Photo excitation means, photo means light, excitation means it will be excited. तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जैसे ही लाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब करेगा, एंड आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेवलेंथ इट विल बी एक्साइट, मींस इट रिलीज इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, एक्साइट होगा. तो फोटो एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इन दिस प्रोसेस द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल विल बी एक्साइट बाय द एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी. यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ये क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. आफ्टर दैट द फोटोलाइसिस और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर हैपन्स. यानी कि जैसे ही फोटो एक्साइटेशन होगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, तो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू होगा. तो क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा, और साथ ही इसको हम क्या बोल सकते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल बोल सकते हैं. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है हम फर्स्ट चैप्टर में बात करेंगे केमिस्ट्री में. वैसे हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. देन अगर नॉर्मली हम ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट से बात करें, देन ऑक्सीडेशन मींस अटैचमेंट ऑफ द ऑक्सीजन and reduction means attachment of the hydrogen ions. अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में, पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका. अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बढ़ रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है. आफ्टर इफ वी आर टॉकिंग दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीजिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं तो रिडक्शन है. तो इनके बारे में डिटेल से हम बात करेंगे केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर में. वहाँ पर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस हम पढ़ेंगे उसके बाद में. तो इन द सेकंड स्टेप फोटोलाइसिस और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, द वाटर मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन. द वाटर मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द Mn2+ और क्लोरीन माइनस आयन, मीन्स क्लोराइड आयंस एंड मैग्नीज आयंस. इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ आयंस वाटर मॉलिक्यूल विल बी ब्रेक डाउन, एंड इन हाइड्रोजन आयंस oxygen and electron will be releases and some water molecules also form. This oxygen
this oxygen due by the through the stomata excreted in the climate में बाहर निकाल दी जाती है, and these hydrogen ions goes in next condition that will react with NADP molecule and it will convert it into NADPH2. NADPH2 आर द एनर्जी पैकेट्स, ये एनर्जी के काम आते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करवाने के काम आते हैं। इनके बारे में हम जब ये सिंथेसिस पूरा हो जाएगा तो हम जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में एनर्जी करेंसी एटीपी पढ़ेंगे, उसी के साथ में जितने भी एनर्जी से रिलेटेड पैकेट्स हैं हम वहाँ पे बात करेंगे। फोटोलाइसिस और फोटो एक्सीडेशन में वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, किसकी प्रेजेंस में होगा, Mn2+ एंड Cl- आयंस की प्रेजेंट में होगा, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, ऑक्सीजन बनेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि फोटोसिंथेसिस से निकलने वाली जो ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू निकलती है, किससे निकलती है, तो किससे निकलती है वो वाटर से निकलती है, ठीक है। यहां पर ये NADPH2 में कन्वर्ट हो गया। दिस NADPH2 मस्ट बी यूटिलाइज दिस NADPH2 इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। थर्ड स्टेप इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन विल बी हैपन इन क्वांटासोम। क्वांटासोम के अंदर ये होगा, और क्वांटासोम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये जो एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विल बी रिएक्ट विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट विल बी रिएक्ट विद आयोडीन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल, एंड आफ्टर दैट इट विल कन्वर्ट इनटू द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मींस ATP। इट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। ये भी किसके लिए नेसेसरी है, डार्क रिएक्शन के लिए नेसेसरी है। देन इन लाइट रिएक्शन व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट, फर्स्टली लाइट रिएक्शन इज नोन एज फोटोकेमिकल प्रोसेस, इसको फोटोकेमिकल प्रोसेस बोलेंगे। इसके बारे में रॉबर्ट हिल ने बताया है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज हिल्स रिएक्शन। आफ्टर दैट द रॉ मटेरियल फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज लाइट एंड वाटर, बिकॉज लाइट शुड बी कंपल्सरी फॉर दिस, बिकॉज लाइट रिएक्शन इज दिस, एंड the water molecule will be breaking down in the step, so it is the two raw materials are light and water. After that the site of this particular reaction is Grena, and it will be completed into 3 steps. First step will be photoexcitation of the chlorophyll molecule. First step will be photoexcitation of chlorophyll molecule. After that photolysis or photooxidation of water molecule will be happen, and in this particular step water molecule will be break down into hydrogen ions and oxygen in the presence of the Mn2+ and Cl- ions, and this oxygen will be thrown out in the climate. So we can say that the oxygen which are releasing in the mechanism of the photosynthesis will be comes from water molecule. These hydrogen ions will be utilized with the NADP to convert it into the NADPH2, which is compulsory, which is necessary for the next reaction. After that the third step is photophosphorylation. This will be happens in the quantasome, and in this particular reaction the adenosine diphosphate will be react with inorganic phosphate molecule, and it will converted into the ATP molecule, which is also known as energy currency, and it is also necessary for the next particular reaction. So this was light reaction. Light reaction को दूसरा क्या नाम है, हिल्स रिएक्शन, और दूसरा क्या नाम है, फोटोकेमिकल प्रोसेस। कहां पर होती है, ग्रेना में होती है। रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, लाइट एंड वाटर चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है, फोटो एक्सीडेशन ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सेकंड स्टेप क्या है, फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल और फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है फोटोफॉस्फोरिलेशन। कहां पर होगा थर्ड स्टेप, क्वांटासोम में होगा। ऑक्सीजन रिलीज किससे होगी, वाटर मॉलिक्यूल से होगी, ठीक है। Now we will talk about the next part second of this photosynthesis mechanism. Photosynthesis mechanism, second type of reaction is dark reaction. The dark reaction is also known as thermochemical process. Dark reaction is also known as thermochemical process. Thermochemical process. It is discovered by the Melvin Kelvin and Andy Benson. It is discovered by the Melvin Kelvin and Andy Benson. So it is also known as Kelvin-Benson cycle. So it is also known as Kelvin-Benson cycle or Kelvin cycle. It is also known as Kelvin-Benson cycle, Kelvin-Benson reaction, or Kelvin cycle or Kelvin reaction. The raw material of this particular reaction is CO2, NADPH2 and ATP is forming here already, and enzymes which are present in stroma. Okay, this reaction is controlled by the light reaction. ये जो रिएक्शन है वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाएगी, लाइट रिएक्शन के थ्रू कंट्रोल की जाएगी, बिकॉज
द NADPH2 एंड ATP आर फॉर्मिंग इन लाइट रिएक्शन। अगर लाइट रिएक्शन कम हो रही है, नहीं हो रही है, तो ADP और ATP और NADPH2 नहीं बन पाएंगे, जिससे कि इनका जो रॉ मटेरियल है वो कंप्लीटली तैयार नहीं हो पाएगा, तो ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा यहां पर भी 3 स्टेप्स होंगे, हेयर विल बी ऑल्सो 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप विल बी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन का मतलब है कार्बन का अटैचमेंट, यानी कि यहां पर जाकर के जो रॉ मटेरियल जो स्टोमेटा से कार्बन अंदर आई थी, यहां पर जाकर के वो कार्बन अटैच होना चालू होगी। अब कार्बन को अटैच करने के लिए कार्बन का एक्सेप्टर होना जरूरी है, यानी कि जैसे कोई घर में गेस्ट आया है तो उस गेस्ट को हमको गेट पर रिसीव करना है, तो रिसीवर होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए। उसी तरीके से CO2 भी इसके लिए गेस्ट है, तो ये गेस्ट है तो इसके लिए भी क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर होना चाहिए। अब यहां पर देखिए 2 कंडीशन है, C3 प्लांट और C4 प्लांट। कुछ देर के लिए C3 और C4 पर ना जाएं, अभी लास्ट में हम इसका डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 2 टाइप के प्लांट्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स। चलिए इसको ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए C3 प्लांट किसको बोलते हैं, देखिए ऐसे टाइप के प्लांट्स, सच टाइप ऑफ प्लांट्स इन दैट इन डार्क रिएक्शन द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड विल बी 3 कार्बन। यानी कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर जब डार्क रिएक्शन चल रही है तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल में, केल्विन साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा वो 3 कार्बन का होगा, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, C3 प्लांट्स बोलेंगे। द टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर हैविंग फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 3 carbon first stable compound in the dark reaction or the Kelvin cycle, so these are known as C3 plants. अब C4 plants क्या होंगे, such type of plants which are having 4 carbon first stable compound in the dark reaction, these are known as C4 plants। यानी ऐसे plants जिनका इस रिएक्शन में, इस साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का, तो उसको क्या बोलेंगे, C4 प्लांट। ठीक है, 3 कार्बन का होगा तो C3 प्लांट। ठीक है, तो C3 प्लांट्स के अंदर जो CO2 एक्सेप्टर है वो क्या है, RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। और C4 प्लांट्स के अंदर क्या है, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। दीज आर 2 डिफरेंट एक्सेप्टर्स इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स। अलग अलग टाइप के प्लांट्स के अंदर अलग अलग टाइप के क्या है, ये एक्सेप्टर्स हैं जो कि CO2 को एक्सेप्ट करने का, रिसीव करने का काम करते हैं। C3 प्लांट्स में कौन रिसीव करेगा, RUBP, राइबुलोज बाइफॉस्फेट, और C4 प्लांट्स में कौन एक्सेप्ट करेगा, PEP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। उसके बाद में जैसे ही CO2 साइकिल के अंदर आता है, एंटर होता है, तो मेन काम चालू हो जाता है। और मेन काम चालू होने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल्स की, एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंजाइम्स यहाँ पर कौन से काम आएंगे, यहाँ पर जो मेन एंजाइम काम आएगा वो कौन सा एंजाइम है, कार्बोक्सिलेज टाइप ऑफ एंजाइम, कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर काम आएगा। अब क्योंकि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेप्टर्स हैं और 2 डिफरेंट टाइप्स के हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेज है वो भी 2 टाइप के होंगे, एक तो रूबिस्को टाइप का और एक पेप्को टाइप का। रूबिस्को मींस राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड सेकंड इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। These 2 type of enzymes are utilized in particular different type of plants. After that the first stable compound will be formed. तो first stable compound की अगर हम बात करते हैं तो in C3 plants the first stable compound will be phosphoglyceric acid, phosphoglyceric acid, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड इट विल बी 3 कार्बन मोलिक्यूल। कितने कार्बन का होगा ये, 3 कार्बन का। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं, तो हमने बोला था कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो उनको क्या बोलेंगे, C3 प्लांट्स बोलेंगे। तो जैसे ये प्लांट है, इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड PGA बन रहा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, C3 प्लांट बोलेंगे। और इन C4 प्लांट द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इट इज ए 4 कार्बन मोलिक्यूल, कितने कार्बन का है ये, 4 कार्बन का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, C4 प्लांट बोलेंगे। तो ऐसे प्लांट जिनमें फर्स्ट कार्बन, जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 3 कार्बन का हो तो उसको हम बोलेंगे C3 प्लांट, और जिसके अंदर फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन का है तो उसको हम क्या बोलेंगे, C4 प्लांट बोलेंगे। नाउ after this particular step carboxylation, next step will be completed synthesis.
सिंथेसिस प्रोसेस में क्या है, यहां पर जाकर के हमारा मेन काम होगा, प्लांट फूड यहां पर जाकर तैयार होगा। इसमें क्या होगा, ये जो CO2 है, CO2 क्या सिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, दैट इज प्लांट फूड। तो यहां पर एंजाइम काम आएंगे, फोस्फेटेज एंड आइसोमरेज टाइप ऑफ एंजाइम्स। फोस्फेटेज एंड आइसोमरेज आर द मेन एंजाइम्स हियर। तो इन द प्रोसेस, इन दिस स्टेप सिंथेसिस, CO2 विल बी कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज। आफ्टर दैट, अब ये काम हो गया, ग्लूकोज बन गया, हमारा पूरा जो हमको रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या होगा, एक्सेप्टर को फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। जो मेहमान आया है वो जो भी आपका जितना टाइम रुकना था उसको वो कंप्लीट हो गया है। अब क्या होगा, जब वो जाएगा वापस तो जो एक्सेप्टर है उसके साथ जाएगा और उसको छोड़ करके वो एक्सेप्टर फ्री हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर इसका काम पूरा हो गया CO2 का, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में। नाउ एक्सेप्टर विल बी फ्री। अब फ्री यहां पर, फ्री का मतलब क्या है, इट विल बी रीजनरेट, यानी कि दोबारा तैयार होगा, ताकि नेक्स्ट जो CO2 मॉलिक्यूल आएगा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट होगा रीजनरेशन ऑफ राइबोलोज बाइफॉस्फेट। नया जो है राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनेगा ताकि नेक्स्ट CO2 मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर सके, एंड दिस साइकिल विल बी इन द रनिंग कंडीशन। ये साइकिल लगातार चलता रहेगा, क्योंकि यहां पर C3 प्लांट्स में फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन, फर्स्ट स्टेबल जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन का है, इसलिए इसको हम C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। C3 साइकिल, Kelvin cycle also known as C3 cycle. Kelvin cycle is also known as Kelvin-Benson cycle. It is also known as dark reaction. It is also known as thermochemical process. ठीक है, तो ये आपका हुआ डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट बास थर्मोकेमिकल प्रोसेस। थर्मोकेमिकल प्रोसेस है, मेल्विन, केल्विन और एंडी बेंसन ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी बोलते हैं। C3 प्लांट्स में इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, C4 प्लांट्स में इसको C4 साइकिल भी बोलेंगे, ठीक है। C3 प्लांट्स में C3 साइकिल, C4 प्लांट्स में C4 साइकिल। रॉ मटेरियल्स का क्या होगा, CO2 होगा, NADPH2 होगा, ATP होगा और एंजाइम्स होंगे। कंट्रोल कौन करेगा इसको, लाइट रिएक्शन इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है इसका जो लोकेशन है, इसकी जो साइट है, साइट क्या है, साइट अपन ने यहाँ पे नहीं लिखी है, साइट क्या होगी इसकी, साइट विल बी स्ट्रोमा, ये अपन बात कर ही चुके हैं ऑलरेडी, स्ट्रोमा। 3 स्टेप्स हैं इसकी। फर्स्ट स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 का एक्सेप्शन किया जाएगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, और एक्सेप्ट करने के लिए उसके एक्सेप्टर्स होंगे। एक्सेप्टर्स जो होंगे वो C3 प्लांट्स में अलग होगा, C4 प्लांट में अलग होगा। C3 प्लांट में राइबोलोज बाइफॉस्फेट होगा और C4 प्लांट में क्या होगा, PEP फॉस्फोइनोल पाइरुवेट होगा। उसके बाद इसमें एंजाइम काम आएगा, कार्बोक्सिलेज टाइप ऑफ एंजाइम। अब कार्बोक्सिलेज एंजाइम में जैसे रूबिस्को और पेप्को, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पर काम आएगा। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो है वो C3 प्लांट्स में बनेगा, कौन सा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड, फोस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन है, और C4 प्लांट्स में बनेगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन वाला बनेगा। उसके बाद सिंथेसिस होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज सिंथेसिस होगा, जिसके लिए 2 एंजाइम मेनली काम आएंगे यहाँ पे, फोस्फेटेज और आइसोमरेज। आफ्टर दैट द एक्सेप्टर विल बी फ्री, जो एक्सेप्टर है वो फ्री हो जाएगा, रीजनरेशन ऑफ RuBP, एंड दिस साइकिल विल बी कंटिन्यूसली रनिंग ऑन। ये लगातार चलता रहेगा। डार्क रिएक्शन लगातार का मतलब है जब इसका स्टेप बाय स्टेप जो कंडीशंस रहेंगी उसके हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द फोटोसिंथेसिस व्हिच विल डिवाइडेड इनटू 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। देयर आर आल्सो 3 स्टेप्स इन दैट एंड 3 स्टेप्स इन देयर। 3 स्टेप्स में यहाँ पर ये 3 स्टेप है और वहाँ पर ये 3 स्टेप्स हैं। ये आपको कंप्लीटली मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं, डाउट क्लास जो होगी लाइव, उसके अंदर आपके डाउट्स से रिलेटेड, जो टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हैं उनको क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।